I'm Usha, and I'm host and founder of the Pivot Point with Usha. I know a lot of us are in our fundraising journey. This conversation is specifically to know कि investor मिले तो मिले कहाँ से, close किया तो किया कैसे. We have just not raised 4 crores. We have in the morning close around $1 billion. Like raised around 2.5 CR from angel and 40 lakh from government and still working to generate revenue. I targeted 1 CR. We raised 1.2 because the investor was like, What is the right number that we need to go with, and what is the number that we should be ready to accept, because there is a lot of negotiation that happens on the capital, right? So what are those challenges that are first that you want to solve once you get the money? So first of all, welcome to all of you, and I think she already announced that these are the guys who have raised just now, and I know a lot of us are in our fundraising journey, and this conversation is specifically to know कि investor मिले तो मिले कहाँ से, right? Close किया तो किया कैसे, and to the to the extent of what email worked. वो ऐसा कैसे मैसेज कैसे भेजें या वो ईमेल में क्या होना चाहिए so that investor looks at your deck, he comes on that meeting and he says yes, right? So we are gonna take all those real questions and pick brains of these three guys who have done it. So welcome. So my first question would be, uh, tell me, along with your name, one fascinating thing that people don't know about you. Okay, we don't do usual intros here. So any interesting thing that people don't know about you, it can be anything. Make it interesting. Thank you so much. And sorry for apologies for coming late in the evening. So my name is Sagar. I'm the founder of Dora Packaging. So we are into the B2B space, providing packaging material for Swiggy, Zomato, Zepto, Reliance, and working with more than 40 plus clients. So there is one small announcement. We have just not raised 4 crores. We have in the morning close a round of $1 billion from our angel network, and we are doing a strategic partnership. Very nice. So talking what is not in the LinkedIn or my resume is it. So during my college days, I was Mr. Toon. अभी तो मोटा हो गया हूँ 100 kgs होगा, but I would be afraid at that moment. Then I moved to a show called Roadies. अगर आप Roadies level में Yes. जा चुका हूँ, तो you can see my videos on the YouTube channel. Okay. मैं hackathon भी खो गया था वहाँ पर. Then I moved to a show called Dropout MTV. Oh, शो के अंदर भी जा चुका हूँ. I not got selected. I got moved out from the round one only. But अभी से हमने सोच लिया था कि कुछ लाइफ में करना है. Then work in companies like Reliance, like those startup. उसके बाद finally work with Swiggy, Instacart. I was at purchase, and वहाँ से हमारी product is. that's really interesting. So we'll share this mic and you Sure. guys can share this one. That's really interesting. That's the bit why I asked this question, because otherwise you would not have known that Sagar has been into roadies. I think it's for millennials, one of the shows that people were really crazy about. But yes, moving on to Vansh. Yeah. hi everyone. So this is Vansh, founder of Minute Night Campaign Source and Marathon Success Wishes. So if we talk about the fascinating thing, when I started my startup, I was just started with my college. And अगर ओवरऑल पूरे 4 साल की बात करें तो एक साल में अगर 365 दिन कॉलेज जाना होता तो 10 या 15 दिन कॉलेज अटेंड किया, बाकी सब बंक्स थे. एंड उसका जो रिजल्ट है, टुडे वी आर सिटिंग here over here and like raised around 2.5 CR from angel and 40 lakh from government and still working to generate revenue higher than the investment always. Awesome. Thank you so much for sharing that. Himanshu, yes. So, hi everyone, my name is Raju Sethi. In the most simplistic sense, what I do, if you are raising your funds, I structure that way. In short, if I'm representing the VC, that they get natural products. If you are representing good, you get products. Okay. Uh, I'll share a couple of interesting things which will help as for a lot of you guys. Before going to US for to
supporting candidates for product vision. I joined my dad's business, which is ball bearings wholesaling trading. And I all I did was for 6 months sales, nothing else, just sales. And those sales are basically you're going to these small water plants, factories, people who would sell to you in Marwari, Gujarati, the east language, right? And you have to pitch them, sell to it. That is, and then you best sales guy you will ever get when you try to do it. Apart from that, interesting thing about me is I'm also a techno DJ, and I've played at some rating board centers across the world, including Ulsan, Orgao, and Goa, and assisted some rating board DJs or their admins. That is my Whoa. Now you guys know if you are going to a techno event, music festival, then you know whom to reach out for DJing. Awesome. I mean, it's great to know about you guys more than what you have built, but as a person, what you have been doing. So great. So my next question is when we are going out to the investors, right? We aim for certain number. Ki we want to raise, let's say, 1 CR, or we need to raise, let's say, 80 lakhs also. What was that number that you had in mind? Ki itna to raise karna hai, but according to the market, you had to like be flexible about ki chalo itna mil raha hai, ye rakh lete hain. What was that number? So basically, when I went for my first fundraising, तो I we calculated कि हमको कितना सेक्टर में पैसा लगेगा. हमारे पास रनवे इतना 12 महीने एंड वी आर अ प्रॉफिटेबल कंपनी. सो रनवे का ऐसा कोई इशू नहीं था. बट हमने 1 साल का पूरा प्लान बनाया बिकॉज़ हमने बहुत फाउंडर से गलती करते हैं 4-5 साल पे प्लानिंग के हिसाब से फंड रेज़ करते हैं. बट कभी भी एज़ पर माय नॉलेज 12 से 14 महीने शुरू करके उससे क्या होगा कि आप अपने डायरेक्शन ज़्यादा कर देंगे. तो टू स्टॉप द डायरेक्शन तो हमने अपना एक बॉलपार्क नंबर बनाया कि हम 5 करोड़ तक के पहले राउंड पे रेज़ करते हैं. तो वो फाइनली हमारी 4 करोड़ की डील हुई फ्रॉम एंजल नेटवर्क बेस्ड ऑन फ्रेंड्स अकाउंट. जिसमें कि समीर गोयल जिन्होंने हमारे फंड पे पैसा कंपनी में फंड डाला था. एंड अगेन जो हमने अभी आज सुबह ही इन द मॉर्निंग एट 8 AM इन द मॉर्निंग आई रीच फ्रॉम बैक वी आर क्लोज $1 billion हमने आज ही क्लोज किया. एंड अगेन आर डूइंग अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ लिमिटेड कंपनी बेस्ड ऑन आई कैन नॉट थिंक द रे until the media में हम लोग लेके Yeah. आना डिसीजन. Yeah. बट यस हमने सारे 9-10 करोड़ का राउंड अभी क्लोज किया है हमने. एंड उनके साथ स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं. हैविंग दिस लाइक 170 प्लस लेऑफ्स इन देयर. उनके साथ हम प्लानिंग कर रहे हैं पूरा एक्सपेक्ट करने के अक्रॉस द प्लानिंग हमारा पूरा प्लानिंग के नेटवर्क है. सो हमने आगे की जो राउंड हमने क्लोज कस्टी प्लानिंग हमने अगले 14-17 महीने के लिए सो दैट कि हमारे पास अनपेयर है 14-15 महीने की और उसके बाद भी वो फंड ना लगता है. Very nice. Yes. this What? 14 month you mentioned that you raised. How will you compute the 14 months will be dispatched? मैं बता देता हूँ. तो हमने अभी हमें पहली वाले से यूनिट टारगेट हो गया. तो अभी वी आर इन द B2B स्पेस. हमारे पास 550 मैन्युफैक्चर का बेस है जो वी आर इन राइट नाउ, जहाँ से हम पूरा का पूरा प्रोडक्शन क्वालिटी है पूरा सप्लाई जनरेट करेंगे एंड वी डिस्ट्रीब्यूट टू आवर कस्टमर पार्टनर्स. तो हमने अपना पहली यूनिट लगाई वो दिया ना. तो हमको पता चल गया कि हमारी पहली यूनिट सक्सेसफुल हो गई है. दैट अगेन रनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मोर देन 3%. तो हमें पता चल गया कि ये प्रोडक्ट मेरा 50% बहुत फायदे का चल रहा है. मुझे इस साल से तीनों मशीन की लगानी है. तो 3 मशीन का 2 करोड़ मेरा कॉस्ट आ रहा है. हायरिंग मेरा 2 करोड़ का कॉस्ट आ गया. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेरा 1 करोड़ का कॉस्ट आ रहा है. तो ऐसे करके हम कैलकुलेट करते थे 14 से 12 महीने मुझे जितना पैसा चाहिए तो नहीं कर पाऊंगा. राइट से अगेन बढ़ जाएगी. बाकी कैलकुलेशन करें बहुत एनबीएफसी एडवांस फैक्टरी जो आपको पैसा देते हैं वहां से मेरा पूरा सिस्टम. Great. For machines to report do the expense. अभी हमारी कंपनी को एग्जैक्टली 2.7 years हुए. तो बैंक का प्रॉब्लमेटिक 3 years का वैलिडेटर पे रहता है. तो हमने ऑल्दो मैंने एनबीएफसी से पैसा रेज किया था 6 करोड़ पैसा वी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग. Great. Thanks for sharing that. Yes, Vansh. So basically, as we are from the tech background and tech sector also. So जब आप टेक प्रोडक्ट बिल्ड करते हो तो आपको वहाँ पे फंडिंग की रिक्वायरमेंट है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए होती है या फिर मार्केट तक ले जाने के लिए. एंड मतलब हमारी जो टीम थी वो ऑलरेडी टेक बैकग्राउंड से थी तो प्रोडक्ट को हमने खुद ही बिल्ड कर लिया था. बट मेजर जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट थी वो थी प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाने की.
बट बिफोर दैट हमारा पार्ट था कि हमें अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करना है। सो हमने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाके टेस्ट किया। अभी जनरेटेड अ गुड रेवेन्यू ऑफ अराउंड 40-50 lakhs समथिंग। सो एज एज सच हमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट उस टाइम पे भी लेनी थी, बट इन्वेस्टर वाज चेजिंग अस सिंस लास्ट। जब से हमने प्रोडक्ट के ऊपर काम शुरू किया था, तब से हमारे इन्वेस्टर को पता था ऑलरेडी कि मतलब हम लोग प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं। वो चेजिंग अस फॉर 6 मंथ की आ जाओ रन लेते हैं, शुरू करते हैं, कुछ साथ में करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे उनकी साइड से हमें एक प्रोजेक्ट पे मिला हुआ है, उन्होंने उसकी पेमेंट होल्ड कर दी। एंड दे टोल्ड अस इन देयर ऑफिस कि भाई जब तक आओगे नहीं, मीटिंग नहीं करोगे एंड इन्वेस्टमेंट पे डिस्कशन नहीं करोगे, हम पेमेंट बिल्कुल भी रिलीज नहीं करेंगे। सो वी हैड अ डिस्कशन विद दीस गाइस एंड हमें भी लगा कि ठीक है, इट्स अ गुड अमाउंट। उन्होंने हमें ऑफिस प्रोवाइड किया अच्छा सा, वेल सूटेड। सो हमें भी लगा कि ठीक है, कुछ ग्रो करना है तो साथ में जाना पड़ेगा, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी तो बड़े लेवल पे स्केल कर पाएंगे। Yeah. सो ऑलमोस्ट उन्होंने हमें सामने ऊपर किया फॉर 2.5 शेयर एंड वी डायल्यूटेड टू एंजल इन्वेस्टर्स। फिर उसके बाद उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि गवर्नमेंट फंडिंग भी एक ऑप्शन है, वहां पे भी जा सकते हो। अदरवाइज प्रोडक्ट तो फंडिंग में वी आर मोस्ट फोकस्ड टू जनरेट रेवेन्यू rather than फंडिंग। सो अगर रेवेन्यू पे ज्यादा फोकस करो एंड आपके पास इतना प्रोडक्ट है जो आपको फंडिंग की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो स्केल है। आपका रेवेन्यू इतना मोर देन इनफ रहता है कि आप उसको स्केल कर पाओ। एंड अगर आपकी मार्केटिंग टीम अच्छी है, आपकी मार्केट अच्छी है, तो आप उसको, आपका प्रोडक्ट वैल्यूएबल है तो आप उसको मार्केट तक इजीली ले जाओ। आपको फंडिंग की डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेक प्रोडक्ट में मैन पावर की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक बार प्रोडक्ट बन गया तो स्केलेबिलिटी और मेंटेनेंस दैट्स इट। सो इट जस्ट उसके बारे में सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग रेज की है रिसेंटली 90 से 40 लाख। एंड आई डोंट थिंक सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डाइल्यूट मोर एंड दैट्स इट। Thank you so much for sharing. Yep. Himanshu. So there are two very important concepts. Number one is locality. मतलब जितने कम रिसोर्सेज और मीन्स में जितना ज्यादा कर पाओ, सबसे इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है। बिकॉज दैट टीचर्स क्योंकि जब ज्यादा आ जाएगा तो कैसे करना है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज एज once mentioned that and it's I just collaborate that with one very respected investor, Mr. Avan. Mr. Ravikant. Ravi, Mr. Avan. You fail at product, that's why you are doing marketing. You fail at marketing, that's why you are doing sales. बहुत ही वन लाइनर बहुत ऐसा तो थोड़े में तो सड़क भी लगना है, बट एट द सेम टाइम it is actually a very important. If your product is good, you just need that initial set of funding companies which can help you to reach customers, particularly in the India market. A lot of VCs Intels will tell you that if you can get every every bit of revenue generate कर सकते हो, तो वो करके दिखाओ, that validates your product. India is very difficult because in India, if you want to sales, you have to show value exactly how that is being driven, right? और उसके लिए वो product बनेगा कैसे? You need those basic parts, right? उतना एक्स करो, उतना डेफिनेटली करो। Depends on whether you're B2B, D2C, उस पे बहुत फर्क पड़ता है। उतना करो, learn how to ready through validity. शुरू में अपने 1 to 3 years की जो जर्नी है, वो ऐसे निकालो। You will realize you have learned so much that any revenue, any funding, anything you are getting after that, that is just an added bonus. You will be able to sell your product. That's it. How much did you target and how much you actually raised? I targeted once a year. We raised 1.2 because the investor was like that. They said, for another. So we did not dilute it. We gave a CCPS tied to a future equity round. Also called ISTIC. Is a so safe is US concept, not directly applicable with here. Yeah. उसका एक email version है called ISTIC, wherein your current fundraising is tied to future round valuation, right? तो सब investors नहीं करते हैं, very related ये concept push कर रहे हैं. And yeah, it's a very, I think it's a very good because for value response, because शुरू में there is no way to justify our valuation, so you do not know really मैं 1 crore raise कर रहा हूँ, तो
whether I should tell you to 5%, 3%, 3%, you are just, it's all in mix and aids. Right. So I'll see this again to about your learn explore these type of affiliation. Yep. And coming to valuation, which a lot of founders, if they are raising right now, they always ask, what is the right number that we need to go with? And what is the number that we should be ready to accept? Because there is a lot of negotiation that happens on the cap table, right? So starting with Suraj, Sure. uh, how much did you go with the valuation number negotiated and what you finally gave away? So first of all, to be very honest, to be very blunt, कोई भी नंबर फिक्स और कोई भी गणित सही नहीं होगी है। इन्वेस्टर ऑलवेज वांट कि मेरे को जितना कम से कम पे ये भाव मिल जाए, वो आपको स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा। वो कोई ARR की कैलकुलेशन पे लेके चले जाएगा, वो MLR की कैलकुलेशन पे आपको लेके चला जाएगा, वो कभी पैट की कैलकुलेशन पे लेके चला जाएगा। वो आपको स्क्वीज़ करने की कोशिश करेगा। बट बीइंग अ फाउंडर आपको ये समझना है कि जो मेरी कैपिटल में आता है, वो कितनी कैलकुलेट करता है। उससे मेरा ऐसा वो होगा, इट्स नॉट अबाउट मनी, also better investors, there are more than 1,000 investors sitting across in the India, US और UK या अगर बात की तो बात नहीं करूँ। You have to find right set of investor for you. अगर वो कैप लेवल पे आके is not getting any value, मान लो आप समझ लो आपने बहुत बेकार इन्वेस्टमेंट केस रखी है। It's not about money, it's about value putting on your capital. Coming back to the main question, valuation. So once we started our journey, हमने पहले महीने में आपको पहली टर्म शीट मिल गई थी। उसका इन्वेस्टर का पक्का था कि 25% में लूँगा भाई, मेरे को 50 लाख रुपए दे दो। 50 लाख रुपए दे दो, 25% मेरे को दे दो। हमने बोला हम नहीं देगा, ये 25% मेरी लॉ लेवल हो जाएगी। उसके बाद में 6 महीने के बाद और 6 महीने बाद लंबा दोबारा से तुम बोला मेरे से 1 करोड़ ले लो। उसके बाद मैंने बोला मेरे से 1.5 करोड़ ले लो। उसके बाद मेरे से बोला 2 करोड़ ले लो। ऐसे फाइनली करते-करते हम 4 को और मेरा इक्विटी डायल्यूशन 29% ही हुआ पहले लॉन्च के लिए। बट वी रेज़्ड 4 करोड़ फ्रॉम दैट इन्वेस्टर। अब यहाँ तक की जर्नी कैसे पहुँची? सबसे इम्पोर्टेंटली वो समझना है बिकॉज़ फाउंडर सबसे बड़ी गलती ये करता है कि एक इन्वेस्टर के पास पिच करता है एंड दे गोस्ट इट आउट। मैंने कभी भी किसी भी अपने इन्वेस्टर को कभी गोस्ट नहीं किया। आज भी मेरा एक प्रॉस्पेक्ट है, मेरा हर महीने की सेकंड को एवरी सेकंड को मैं एक एमआईएस रिपोर्ट बनाता हूँ और कोई फैंसी एमआईएस रिपोर्ट नहीं कि वो एक्सेल शीट जा रही है। इट्स अ वन पेजर कि यहाँ से यहाँ तक कितना ग्रो हो गया, पिछले महीने हमने ये किया था, हमने दूसरे महीने ये किया था। लेकिन मैं होमवर्क नहीं करता हूँ इन्वेस्टर्स के ऊपर। जो मेरे को आज इन द मॉर्निंग 8 बजे की जो डेली वीडियो फोमो क्रिएट करके तो हर महीने मेरे व्हाट्सएप पे मैं ब्रॉडकास्ट मैसेजेस बता रखी है। उसमें बस एक सिंगल पेजर, सिंगल लाइनर, एक पूरा पैराग्राफ लिख के मैं उसको भेजता हूँ। उसके 2 दिन के बाद मैं उसको ईमेल पे भेजता हूँ। आज भी मेरा ये रहता है कि मेरे को एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आपको फंडरेजिंग करनी है, तो पीपल जब मेरे पास 5 महीने, 6 महीने का रिटर्न बचता है तब लोग इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। मैं आपको बिना फाउंडरों के बता रहा हूँ, सबसे राइट टाइम इन्वेस्टमेंट है जब आपको पैसों की एग्ज़ैक्टली रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आप उस टाइम पे पैसा रेज़ करने के लिए जाओगे ना, तो आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे उस इन्वेस्टर के साथ नेगोशिएट कर सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ इट्स नॉट अबाउट मनी उसके बाद जो एसोसिएट करता है, उसपे एन नंबर ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। आपको उस पे नेगोशिएट करना पड़ता है। इवन देयर आर फ्यू केसेस मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि वो आपकी सैलरी तक पे कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं कि आप इतनी सैलरी से इतना आप ऊपर विथड्रॉ नहीं कर पाओगे। फिर आपको लगेगा यार मैंने कंपनी बनाई, मैंने निर्माण कायम करी है और मेरी ये नया वीसी आ गया मुझे ही सिखाएगा कि भाई कितना पैसा रेज़ करना है कि नहीं करना। एंड कभी भी अगर आपको 1 मिलियन तक का अराउंड बुक करना है, प्लीज़ वीसीज़ के पास मत जाइए और वेस्टिंग योर ओन टाइम बिकॉज़ वीसीज़ के पास पर डे 400 से 500 मिस्टेक आती है। मैं नॉट श्योर आपका आइडिया वो 1 इन द मिलियन राइट होगा। आप फैमिली ऑफिस के पास जाइए, मुझे नहीं पता कितने लोगों को यहाँ पे पता है फैमिली ऑफिसेज़ के बारे में। फैमिली ऑफिसेज़ से ही वीसी बने हैं, वीसी से फैमिली ऑफिसेज़ भी बने हैं। फैमिली ऑफिसेज़ का मतलब एक एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ। लेट्स से कोई बिरयानी करनी कंपनी है, बिरयानी वांटेड टू इन्वेस्ट बिकॉज़ उनका पैक उस लेवल तक पहुँच चुका है, अरे वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं करा पाएंगे। तो दे वांटेड टू इन्वेस्ट इन आवर सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं एंड वहाँ से अपने पैक को इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप फैमिली ऑफिस को रीच आउट करो, एंजल्स को रीच आउट करो, वहाँ पर होते होते ही उनके पास हफ्ते में 2 या 3 टेक पहुँचती है। वीसीज़ के पास दिन में 4-5 टेक पहुँचती है। तो आप 1 इन द मिलियन कैसे बन पाएँगे? और जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, अगर आपने एक इन्वेस्टर ने आपको नो भी बोल दिया है, ताकि आप उसको हर महीने अपडेट भेजो। अभी तक मैं 70 इन्वेस्टर से रिजेक्ट हो चुका हूँ। इट इज़ नॉट अ वर्क कि क्या तो मेरा 71 इन्वेस्टर आया, क्या उसने मेरे को बिलीव नहीं किया, क्या मेरा आइडिया रॉन्ग था तब नहीं था, बिल्कुल था।
बट वो 70 लोग मेरे आइडिया को नहीं समझ पाए। बट आज भी और आगे भी मैं उनको अपना मैसेज भेजता हूँ कि भैया मेरी कंपनी की ग्रोथ यहाँ तक आ गई, अगले राउंड में आना है। दिस इज ऑल। आई लव दैट बिकॉज़ ये ना काफ़ी लोग मिस करते हैं कि जैसे इन्वेस्टर को एक बार बोल दिया, उन्होंने मना कर दिया एंड दे जस्ट एक्सेप्ट दैट नो। That no is actually a cue for you कि keep sending them update, whatever is convenient to them. Another thing that I want to add is a lot of investors are very comfortable with WhatsApp. A lot of them are very comfortable with email. So first find out what they are comfortable with. कहाँ पे वो information उनको spammy नहीं लगी. But keep on sending this every month because that is telling them, that is reminding them what you are building. And as he said, like do it like religious sales process. How we do it for sales. हम कस्टमर के पीछे पड़े रहते हैं ना जब तक लेना ले. इन्वेस्टर के साथ भी सेम फॉलो अप, सेम CRM, सेम रिलेशनशिप मैनेजमेंट लगता है. So yes, I love that bit. Vansh. So basically, first of all, I want to ask कि यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए चेज कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को? Can you please raise a hand? Anyone of you guys? Like इन्वेस्टर्स को कौन-कौन चेज कर रहा है? ये जो लीनियन करते हैं इन्वेस्टर्स को या एंग्री? ओके। सो जब मैं बता रहा था कि लाइक इन्वेस्टर्स हमें चेज कर रहे थे, हम 6 महीने तक उनको रिवर्ट नहीं कर रहे थे, तो आप लोगों ने सोचा होगा कि ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आपको इन्वेस्टमेंट देना चाहता है, आप उसको रिवर्ट नहीं कर रहे हैं? सो उनकी जो आस्क थी वो हमारी कंपनी में 51% का स्टेक था, ठीक है? सो 51% का स्टेक देना मतलब बिल्कुल बेसलेस हो जाना है। कंपनी जिसको आपने 1 साल तक पढ़ा गया, आपने रेवेन्यू जनरेट करा, अपनी कंपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करी मार्केट के अंदर, ट्रस्ट लेके आए लोगों के बीच में एंड आज एक इन्वेस्टर जिसको पता भी नहीं है कि क्या-क्या करना पड़ा है आपको उस कंपनी को बिल्ड करने के लिए, वो आपसे 51% का स्टेक माँग रहा है 2.5 करोड़ रुपए के लिए। क्या होता है ये? कुछ भी नहीं। सो हमने उनको 6 महीने तक मना करा बट द थिंग वाज़ कि वी वर प्रॉफिटेबल ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, वी वर नॉट चेजिंग द फंड्स। सो हमने अपनी सिंपल सी टर्म रखी कि जो हमारी कंपनी है उसके अंदर तो स्टेक नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। आपको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, एक नई कंपनी बिल्ड करते हैं और उसके अंदर प्रोडक्ट को डाल के वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट डाल दो। सो हमने इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉपर्ली नेगोशिएट किया बट दे वाज़ स्टिक ऑन द 51% पार्ट। तो हमने नई कंपनी बिल्ड की जिसकी वैल्यूएशन 0 थी। उन्होंने उसके अंदर 2.5 शेयर की फंडिंग डाली, हमें 49% मिला, हमने उसके अंदर प्रोडक्ट डाला एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग थ्रू। सो बेसिकली अगर आप सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को वैल्यूएबल कर लोगे और ट्रैक्शन ले आओगे, उस दिन आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे एंड आप नेगोशिएट कर पाओगे अपने इन्वेस्टर के साथ प्रॉपर टर्म्स पे। वो आपको नहीं बताएंगे कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। आप उनको बताओगे कि आपको क्या रिक्वायर्ड है। आपकी टर्म्स उनको बता पाओगे और अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को स्केल कर पाओगे बिकॉज़ आपको पता है कि इस प्रोडक्ट को मार्केट तक कैसे लेके जाना है। आपका विज़न है जो वो प्रोडक्ट आज यहाँ तक पहुँचे कि आप एक इन्वेस्टर के सामने पिच कर रहे हो, राइट? तो आपको पता है कि क्या टर्म्स होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या अमाउंट होनी चाहिए, उसकी क्या परसेंटेज ऑफ वैल्यूएशन और इक्विटी होनी चाहिए। Yeah. Thank you so much. I mean, that was a great way to not just give up your company, but that was a very wise way to do it. But yeah, Himanshu. My suggestion to both of these guys is कि you're higher guys. So they wish I tell you guys. So as founders, you understand your product, you understand your sales, marketing, everything. What you won't understand is whatever you are getting, whether that is kind of price or आप कुछ दे रहे हो उसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, राइट? बट जितना देना है आपको नहीं पता है, जो दे रहा है उसको जरूर पता है आपकी वैल्यू जाएंगी। और अगर if you are having a lawyer by your side, he also knows through experience if that similar set of deals he has done in the market. कोई भी इंटेक कर चुका है, कोई इंटेक कर चुका है, जनरली सभी सब कुछ ही करते हैं। तो we typically have or more of that idea how much you value, right? SHA as was stated shareholders agreement, right? SHA is a very complex document. उसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट सिर्फ ये नहीं होता है, this is just one very small by the way, yeah, कितना dilute है। VC का also or merger capitalists famously in market. Why? Because not everyone is good. They have a duty to provide maximum returns to their limited partners. बेसिकली उनके पास एक गुल्लक है जिसमें बहुत सारे लोगों के पैसा आता है और उनको रिटर्न्स देने हैं, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं अच्छे साधन को पकड़ के
उसमें से मैक्सिमम चंक उठाने का फॉर मिनिमल प्राइस. योर जॉब इज टू गिव minimal things, get maximum. That is the whole right, right? But that is one very basic thing. और बहुत सारी चीज होती है उस फाइल के बारे में. ऐसी चीज के is something called अवॉइडेबल OT areas. What was a spreadsheet कि आपकी सैलरी के ऊपर क्या बनाया जाता है, right? ऑफिस में कितना one very small thing. एक 35 आइना थिकनेस मिल जाएगी कि पार्टिकल्स अमेंड नहीं कर सकते, कनेक्टेड कमांड नहीं कर सकते, राइट? मतलब ऐसा वो हमसे परमिशन मेंटेन है. अब वह मेंटेनेंस वार्निंग देना पड़ेगा हमसे, राइट? At Prestige, you say you are not just diluting that, you are also in what writing during distance, right? आपको पता ही नहीं है in future how that can impact me. We just sorted it easy. Wherein the investor had put in one angel now had put in 30 lakhs. Okay. What 1% equally against it. What he also got was an appointment of director, right? He get appointed director in the board. What is that implication here? Any investor who is coming into your company in future, एक पर्सन वाले कोई इन्वेस्ट करेगा 30-25 लाख को अभी वो करेगा. You are giving that guy a free way to appoint his director because वो करेगा 25 लाख मांगेगा, right? So it is extremely important to understand what you are signing. There are so many outlets when the company is going to IPO, exits, right? They are walking away without any. Versus those strategies will reach what their strategies were in here, company baby, Kamaya, investor, liquidation preference. So many things are there, right? So understanding yourself is good, not just reliable or but of course I have a book provided to negotiate. Very important. Precaution is better than cure always. There is no cure once you sign the We'll have the Q&As towards the end. But thank you. So I know lawyer in Himanshu is like कि ये वाली गलतियां मत करो. But we'll keep that for later. Uh, so we will stick to the questions because we have time constraint also. So my next question is, a lot of founders, whatever stages they are at, right? Seed, pre-series A or whatever, they want to know what data they should be going to the investor with, so to convince them, be it the revenue, what numbers, like what data will make the investor say yes, I want to invest. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने कंपनी का डेटा रूम बनाना चाहिए. इन डेटा रूम यू शुड हैव अबाउट दिस बाइलिंग नोस कि इन्वेस्टर कैसे खुश होता है. अगर आपने सिर्फ डिस्ट्रैक्ट भेजा ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 99.9% चांसेस है वो शायद गो थ्रू भी ना करे. इन्वेस्टमेंट भी बहुत मुश्किल बात है. तो यू शुड हैव वन डेटा. उस डेटा रूम में आपका जीएसटी, एओए, एमओए, जितने भी सर्टिफिकेशन आप लगा सकते हो, इंक्लूडिंग टेक पोजीशन, एमआईएस, ये 4-5 पैरामीटर हमेशा अपने डेटा रूम बना के रखें. ऊपर उसको सर्वर पे डाल दीजिए, उसको एक्सेल पे डालिए, अपने ड्राइव से लिंक कर दीजिए एंड उस लिंक को हर इन्वेस्टर को भेजिए. वाई? बिकॉज जब आप लिंक खोल के देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि यस, ही नोस फंडामेंटल अबाउट द इन्वेस्टमेंट. देयर आर फ्यू व्हेन आई वाज डूइंग माय फर्स्ट राउंड, मुझे भी पता था व्हाट आर द कंसंट्रेशन, क्या ऑफर ऑफर में क्या लिक्विडेशन प्रेफरेंसेस ट्राई करना है क्या. आई स्टडी, आई हैव इनके साथ हम उनके साथ कन्वर्सेशन करिए. वी डिस्कस विद द सीरियसली, डिस्कस विद लॉट ऑफ अदर. यार एक भी छोटी गलती ना करने पर तो एक ऐसा ना एक इसमें हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है. बहुत इन्वेस्टर्स बोर्ड पे आना चाहते हैं, तो वो एक अलग कहानी है. टू डिस्कस वो अबाउट दैट पार्ट. बट यस, वो आपके ऊपर है कि आप बोर्ड पे देना चाहते हैं नहीं देना चाहते. वी आर नॉट गिवन टू एनी अदर इन्वेस्टर. तो आंसरिंग टू दैट क्वेश्चन कि इन्वेस्टर किससे खुश होगा, तो कुछ उसका राइट और रॉन्ग वे नहीं है, बट जो मुझे काम आया वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. यू हैव एक्सेल, उसके अंदर अपने सारे डेटा को डालिए, अपने कंपनी के नाम से डेटा रूम बनाइए एंड राइट समथिंग अबाउट यू. मतलब ये पैराग्राफ जब आपके पास इन्वेस्टर के पास जा रहा है, तो पहले 20% अपने आप को बेचो. व्हाट गिव वन, आप क्या कर रहे हो, आपका क्या बैकग्राउंड पॉइंट. फिर उसके बाद अपने नौकरी के बाद में फ्यू लाइनर्स, नॉट ऐसे देना, उसको टाइम नहीं होगा. हैज टू बी 10 से 30 सेकंड में पूरी वेट कर ले. कितना है आ रहा है, कितना एमआर आ रहा है, प्लस 20 से ग्रोथ कर रहा है, उसके बारे में वहां देखो एंड उसके बाद अपना डेटा का रीड करना. देन डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का रीच आउट और
आना स्टार्ट वापस से। थैंक यू सो मच। आई मीन द पार्ट व्हेन यू सेड कि आपको फाउंडर अपने बारे में सबसे पहले राउंड के लिए यू वुड लिटरली बी सेलिंग योरसेल्फ कि एज अ फाउंडर हाउ सॉलिड यू आर, हाउ मच नॉलेज यू हैव अबाउट योर इंडस्ट्री. That is what the investor wants to know. If he is putting in money, he wants to know you know your industry better. क्या कितना पता है, क्या build कर रहे हो, how solid are you as a founder. So you have to be solid. You have to be selling yourself initially. Yes, Vansh. बेसिकली जब आप एक startup को बिल्ड करके जाते हो, आपका मेन जो गोल होता है वो की रेवेन्यू होता है, आपको अच्छी क्या है, राइट? सो जब आप रेवेन्यू जनरेट करने जा रहे हो, अल्टीमेटली आपका जो सामने क्लाइंट है, ही इज आल्सो बिजनेस है, एंड आपको नहीं पता होता कि वो सामने वाला पर्सन क्या करता है, अल्टीमेटली ऑफ द लोन्स को क्या करता है. सो हमारे साथ सिंपल सा जब हमने क्लाइंट को पिच किया, वो हमारा एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर निकला. ठीक है. सो बेसिकली द थिंग वाज कि हमारा सिंपल था, हम लोग रेवेन्यू जनरेशन पे फोकस थे, क्लाइंट्स को रोक रहे थे इधर उधर. जब आप कहीं की सो कॉल करते हो, फिर उसमें आपको एक अच्छा पर्सन मिलता है, राइट? तो आपको पता चलता है कि वो सो कॉल कितनी वैल्यूएबल थी रेदर देन वो 100 शेयर जो आप इन्वेस्टर को भेज रहे हो, राइट? अगर आपको 1 करोड़ रुपए का 1 करोड़ रुपए की फंडिंग रेज करनी है, आप 10 लोगों को 10-10 लाख रुपए का कुछ भी चीप प्रोजेक्ट पिच करते हो, जो कि आप अपने स्टार्ट में कर रहे हो, लेट्स से आप 10 लोग 10 क्लाइंट्स लेके आओगे, तो 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा विदाउट वैल्यूइंग इक्विटी. तो हमारे सिंपल था, हमने हमारे इन्वेस्टर को प्रोजेक्ट पिच किया था, हमें ये पता था कि वो इन्वेस्टर भी. सो उन्हें प्रोजेक्ट पसंद आया, हमने टाइमली डिलीवरी की, एंड एट द एंड ऑफ द डे फिर हमें पता चला कि इज इन्वेस्टर. हमारे उनके साथ एक काफी लंबा डिस्कशन चला, काफी Hmm. दिनों तक हमारा उनके साथ डिस्कशन चला. Yeah. बाय द वे, व्हाट वाज द मेन क्वेश्चन? So I was asking कि what is the initial data that convinces a investor to invest in you? सो बेसिकली इस पूरे डिस्कशन के बीच में उनको पता था कि हमने उनको क्या चार्ज किया हुआ है इस छोटी सी चीज पे. हाँ. सो उनको इंटरेस्ट आया कि यार अगर ये हमें इतना चार्ज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे. उन्होंने सामने से पूछा कि आप लोगों का रेवेन्यू क्या है. फिर हमारी डॉक्यूमेंटेशन वाली बारी आई, उन्होंने सारी चीजें चेक करी, एंड द मेन थिंग व्हिच ऑन व्हिच ही वाज फोकस्ड ऑन, दैट वाज द रेवेन्यू. कि रेवेन्यू कितना जनरेट करा है. अगर आपने एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है, एंड ऑब्वियसली अगर अच्छा प्रोडक्ट है तभी आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, दैट इज ऑलरेडी प्रूवन. सो अगर आपने रेवेन्यू अच्छा जनरेट किया हुआ है, आप उसके साथ में अपने इन्वेस्टर के पास जा रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ, दैट इज द होल सोल व्हिच ही इज लुकिंग आफ्टर. सो Yeah. अगर आप अपने एक अच्छे रेवेन्यू के साथ में, एक अच्छी टर्म शीट के साथ में इन्वेस्टर के पास जाओगे, दैट विल बी मोर देन इनफ, मोर देन द क्वांटिटी यू आर शेयरिंग टू. Yeah. One thing when you said you pitched 100 people and that is not a small number. Like अगर आप हर दिन के 100 कॉल कर रहे हो ना क्लाइंट को, कई बार नहीं भी मन करेगा, स्टिल इफ यू आर परसिस्टेंट इनफ टू डू दैट, you might actually find there are high chances that you'll find investors in those early customers, क्योंकि वो आपको already trust कर रहे हैं, and if they have money then they definitely want to become a part of your journey. So that is one of really good cases when your delivery and product is so good that they want to invest in you. Love that. Yeah, Himanshu. So, I will tell you what first easy thing that you can tell your investor and the hard one. So, the easy thing that you can tell your investor is who you are, your domain expertise, what is the problem, what is the solution, what is the revenue, if there is any revenue or potential of revenue, right? What is the ask and how you're gonna spend all that money, what is the competition, and what is the existing tax scale, right? So मैंने खुद भी नहीं बताया, पिछले की slide आता हूँ. Now this is the easy part. The hard part is you have to get all of this in the most simplistic manner in 1 minute. That is called elevator pitch. So if so, why I'm telling you this is the most important part already idea. But जो सबसे important मेरे में है वो ये है, it is the most difficult part. क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम एलिवेटर पिच करते हो, फर्स्ट टाइम बोलोगे, आप 1 मिनट में बता ही नहीं पाओगे ये सारी चीजें क्या है. It will be very difficult. As you keep on trying, 100 pitches. 100 pitches के बाद आपको समझ में आता है कि वो 30 सेकंड में 1 मिनट का सब कुछ कैसे होना, right? That is what creates magic, because you have to always understand that the investor in front of you has more domain expertise. He's a toddler of 5 years.
we are going to explain he or she to in that manner that we will explain over 500 room, right? He or she will of course come with some counters. Those counters are good for you because that means that he has gotten something. He's interested. You have captured the interest. And now the easy part is to answer all those questions. That is how we actually did it. But the hard part is to capture all the value. It was Yeah, absolutely. Another thing is, जो I think a lot of founders ask, and I think they would ask you whenever now you are meeting people. Um, when you met the investor, how did you get through? Like, how many did you pitch? Finally, किसने हाँ बोला? और कैसे आपने उसे परस्यू किया और कैसे कन्विंस किया? सो टॉकिंग अबाउट नंबर्स, कितने फेल्ड अटेम्प्ट्स वर्सेस हाउ मेनी पीपल सेड येस? हाउ मेनी डिड यू से नो टू? बिकॉज़ दैट इज़ आल्सो अ रियलिटी कि आप सबको हाँ नहीं बोल सकते, यू हैव टू लुक एट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो व्हाट वाज़ दैट सक्सेसफुल number and failed attempts for you? My first pitch, जिसको मैंने करी थी, he was my first investor. I was very lucky. He जिसको मैंने first pitch करी, but the problem is he ghosted me for 5 to 6 months. But मैंने उनको ghost नहीं दिया. I start sending emails on month-on-month basis. अरे कितना ग्रोथ हो रहा है, अब इस महीने में क्या प्लान है, नेक्स्ट क्वार्टर में क्या प्लान है, नेक्स्ट ईयर का क्या प्लान है, नेक्स्ट 6 महीने का क्या प्लान है, कितने लोगों को हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं, कितने प्लेयर्स हमारे पास आ गए, सारा डेटा का फिल उसका था. And finally, after 5 months, he said yes, कि चलो let's close this deal. Secondly, talking about the numbers, Yeah. lately I have talked to more than 70 plus investors, जिसमें से around 69, 68 लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया. एंड उसमें से अगर नंबर की बात हो, उनमें से 2 से 3 को हमने मना किया. रीज़न मैं आपको बता रहा है. कि वो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस कैपेबल को लेके आते हैं व्हिच आर नॉट फेवरेबल फॉर राइट नाउ. इट कैन बी लाइक दिस कि हम सीरीज़ या सीरीज़ बी के टाइम पे जाएँगे. वी कैन से यस एट दैट मोमेंट. बट व्हेन प्री-सी या सी या लेट्स से प्री-सीरीज़ तक में वी आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर दैट. सो दिस इज़ आवर आंसर. Understood. I think this won't be very valid for you because the investor came to you, which is honestly a dream case scenario for most of the founders. But yeah, what was that number for you, Himanshu? it was very similar for me also. Hmm. I my was investor stumbled on me on the last day of the year, something like that. We were almost overwhelmed and he just showed up. And I did not know he's an investor. I was just doing my regular job throwing the demo. And after the import raising this reach out to that. He did about that we would like to discuss more. But that demo for 5 days, I went I went in also by the way, then exercise. Yeah. And for those 4 days, I did whatever. One day, Mr. Together, because of that, Mr. Combi's whole thing. So, I did so many demos that I would exactly what would take in 1 minute, 2 minutes to any potential client, customer, investor. I would not know. For me, that did not matter. I knew that all the pitching titles I just did, I knew एक मिनट में 2 मिनट में उसे क्या बोलना है, and then just collaborate that with the developers. That's how it happened. Also, I have a very good friend, Harsh Pokana, Open CEO. He had his community. It's not there anymore for the next big thing. There we used to have a lot of mock pitches and various investors, CEOs, etc. would come and analyze it. Just I was pathetic. The few initial few pitches I did, the rule was simple. People think which would have got like I just one questions. I realized leaders are like bullying my own. It was so complex. And I did that for at least 10 to 12 months. Positive I started getting hang of it. So for me, that work after that, he has something hundreds of demos. And that's the last demo, which actually got finished. Yeah. Actually, I saw you there. He was diligently pitching anyone who was there. Like
not even asking if someone is customer or not, but he was like very into ki acha, this is the product that I'm building. But very nice. Another thing that he said is you keep pitching, you keep putting yourself out there, and that's how you get good at it. Uh, Honestly, be it with content, if you're doing your own marketing, personal branding, whatever it is, pitching in front of investors, pitching to clients, the more you put yourself out there, the more you get better at these things when you do it more and more. So that is one of a really good thing, that do not hesitate. Everyone is really bad at first. Like uh, I'm sure like no one of us is like perfect the first time we are pitching. Of course, Suraj had television already exposure, so he was much more confident initially, I'm sure. But a lot of us, we have to get confident on the way, like keep pitching and keep getting better at it. That's what I also believe in. But one thing that, so sources of, you know, be it LinkedIn, yeah, what worked for you? Uh, can you share that? So what worked for me is differences only, to be very honest. So I had been passed out from IIM right now. Network था हमारे पास already. I took some data from there. And हमेशा से देखा था कि मेरे लिए right stuff था investor कौन है. So approaching to emails and WhatsApp was my key task and conversion. Yes, I connected few of the investors on LinkedIn. But LinkedIn पे उतना मुझे ऐसा लगता है it doesn't work for me. There are few of my fellow campus जिनके लिए वर्कआउट हुआ. वहाँ से ही स्टार्ट हुई कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई एंड डील करनी कोशिश. अगर आपको देखना चाहिए तो मतलब यह टू बी या करें एंड जितनी भी न्यूज आ रही है लेट्स से कि दिस कंपनी हैज दिस वीसी और दिस एंजल हैज इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, आप उन पे एक्टिवली देखते रहिएगा, आप उनको पिच करना स्टार्ट करेंगे बिकॉज उनके पास फंड है, अभी वो डिप्लॉय करना स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज वीसीज का टेलियो बोल रहे हैं मुझे इस फंड को 5 साल का खर्च करना 3 साल का खर्च करना है और उनको एग्जिट 8 साल 9 साल 11 साल, तो आपको वो पहले समझना पड़ेगा. तो अगर आपको जितने भी लास्ट 6 महीने के अंदर रिलीज साइन ऑफ देख रहे हैं, जो भी आपके पास मीडिया चैनल्स पे आ रहे हैं, आप उन वीसीज कम एजेंट्स को आप रीच आउट करना स्टार्ट करेंगे, आपके कन्वर्जन के पॉसिबिलिटीज मच 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 हायर. Understood. You also mentioned about family offices. Yeah. And family offices are one of the things that people are really getting to know. It was really there out there, but a lot of people are really interested in family offices. So if you found some good family offices through, let's say, some sources, if you can name them, that would be really helpful. So there are many family offices, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेता देन आई मेक यू है. तो कॉन्सेप्ट ये रहता है कि लेट्स से आई स्टार्टेड माय जर्नी, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया छोटा अमाउंट स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से 1 लाख चेक से लेकर 1 करोड़ 2 करोड़, तो आई विल कॉल एज एंजल इन्वेस्टर. देन सेकंड फेज आता है जब मैंने अपनी कंपनी बिल्डअप कर दी और मुझे अपनी कंपनी के फंड से या मैंने पूल निकालकर साइड कर दिया, तो आई कॉल इट एज ए फैमिली ऑफिस की मैंने एक छोटा सा अमाउंट 5 करोड़ से लेकर 25 करोड़ या 30 करोड़ तक का फंड कर दिया. और पहले जो फैमिली ऑफिस लास्ट 1 से 1.5 साल के अंदर बहुत हिट हुए हैं. तो पहले क्या होता था कि फैमिली ऑफिस वीसीज को पैसा देते थे, जैसे गुल्लक वाला एग्जांपल आपके सामने आया, वीसीज के पास एक गुल्लक होती है, तो वो जो गुल्लक का जो पैसा होगा टेक्निकली वो फैमिली ऑफिस पे होगा. तो फैमिली ऑफिस और पैसा डालता है, वहां से एक वीसी बनता है और वीसी एन नंबर ऑफ स्टार्ट करना पैसा डालता है. तो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट जो पता होना चाहिए. अगर मैं आ जाता हूँ नेवी थ्री ऑफ टेन, तो जैसे मैंने ब्रिटेनिया का आपको बताया, उसके बाद निखिल कामत का फैमिली ऑफिस है, इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट का फैमिली ऑफिस है. उसके बाद देर आर, आप जितनी भी कंपनीज को देख रहे हैं, दे आर रनिंग शोज 90% है सबने अपना फैमिली ऑफिस बनाया. जितनी भी इंडस्ट्रीज, अगर लेट्स से जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी ब्रांड्स के पास आप रीच आउट करेंगे, उनके सबके फैमिली ऑफिस बने. So 90% of the companies are investing in the startups right now. Yeah. Thank you so much for sharing that. Once, if you have seen, like, of course, in your case, they reach out to you. They were your customers, but if you have seen some sources working out for friends who have raised, if you can share that. So basically, before friends, because ऐसा होता है कि मार्केट में एक फ्लो चल रहा होता है हमेशा, ये फंडिंग चाहिए, फंडिंग चाहिए, फंडिंग चाहिए. Yeah. The requirement नहीं थी, but still we reach out some of the sources. So I would drop it into the group if we can share with these guys. Yeah. So like कुछ links and कुछ sources थे जहाँ पे हमने कई बार reach out किया, हमें कुछ forms किए, वहाँ से हमेशा revert आता है. And if we talk about today, last night I got 2 reverts from the investors, but I don't know how to do it then. So yes,
I have some of the sources. I will show you here and yes, like family office is one of the best source as of now, which I am seeing because almost around 4 of my friends recently raised funds from family office. Great. Thank you so much for extending that. And founders who are raising, feel free to connect with these guys. I mean, not just once. I'm sure Suraj and Himanshu or me, like, we would love to help you, even if it is not like. As I was speaking to one of the founders right now, I just told him ki abhi mat raise kar. You are not at the point, but keep building. You are at the right path. Just come to the point where you can finally start pitching to the investor, but not right now. It's too early. So reach out to people, and I'm like in the industry, I've seen more often than not, there are so many people who are ready to help you. So the only thing is you just need to cold DM them, reach out to them, and ask for help, and be specific about what help you are seeking. But yes, yeah, thank you. Yeah, Himanshu. So, a very simple thing I can tell you is, if I ask you 1,000 rupees, I give you, I tell you that I'll give you 10,000 rupees against it. Would you give me 1,000 rupees? Anyone? No? Anyone? कोई देगा? कोई भी एक दो पूछेंगे जो दे देंगे 1,000 रुपए में, ठीक है? तो तुमको बस उन लोगों को ढूंढना है जिनके लिए वो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए 1,000 रुपए के बराबर है। अब they could be Indians, could be VCs, family offices, the more is your market, you can raise from anywhere, investor can stumble, reach out to you can reach out to them. All you have to do is, the only thing you have to do is show up daily. For showing up daily, anywhere, everywhere, that's all it works. So, for me, I will not put my money on any one particular source. I would not put my money on whether I'm doing coding else, whether I'm doing calls, whether I'm doing offline meets, whether I'm doing anything, any release like that. I literally with the lectures, see, this hey, Abhishek Vikar. I reached out to him on Instagram on one of the common industry I that's only for talking, and now we are in we are in touch, and we are also making business on it. And talking about investment. And so the world is your market. Go anywhere to show up. Absolutely. So one of the things, once you have raised, I also want to share those problems that comes with money. Like, it solves a lot of things. It's one of the important resources. But what challenges then starts coming in front of you? Ki ab paisa aa gaya hai, now we need to solve these things like very quickly, because now you have investors on your head also, right? So what are those challenges that are first that you want to solve once you get the money? So as I mentioned earlier कि जो आपका 11 से 14 महीने का या 15 महीने का प्लान होता है, कुछ भी नया प्लान मत लेके आइए, बिकॉज़ आइडियाज़ बीइंग अ फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, आइडियाज़, चैलेंजेस डेली बेसिस पे आते रहते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप अपना रोड मैप को चेंज करते हैं। तो स्टिक टू योर रोड मैप, ठीक है, थोड़ा डेविएशन आएगा रोड मैप से, इट्स ओके टू दैट। बट अगर मैंने फंड सोचा हुआ है कि मुझे इस 6 महीने के अंदर 2 करोड़ का फंड ही डिप्लॉय करना, तो मैं 2 करोड़ का ही फंड डिप्लॉय करूँगा कि मेरा मेन अकाउंट खाली से ना हो जाए। इट इज़ नॉट लाइक दैट, क्योंकि अगर आप वर्किंग कैपिटल के अंदर भी अपने इक्विटी का अमाउंट को भी रोटेट करने की कोशिश करेंगे, एंड लेट्स से मुझे मैन्युफैक्चरिंग में पैसा डाला हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में पैसा नहीं डाल पा रहा हूँ, या मुझे टेक पे पैसा डालना है, मैं टेक पे पैसा नहीं डाल पा रहा हूँ, तो जो मेरा रोड मैप 12 महीने का, वो रोड मैप मेरा 20 महीने का चले जाएगा। एंड अगेन उस रोड मैप पे पहुंचने के फिर मुझे इक्विटी रिलीज करनी पड़ेगी। तो इट इज लाइक जो आपने रोड मैप अपना बना रखा है, आपके सामने वो नंबर्स है, आपके सामने वो पैरामीटर्स है कि मुझे ये फंड को यहाँ पर एक्स वाई जेड के अंदर करना, तो प्लीज एक्स वाई जेड की पहले प्रॉब्लम सॉल्व करिए, उसके बाद एबीसी के बारे में सोचिए। अगर एबीसी की प्रॉब्लम आ गई, उसके लिए कुछ और मेथड निकाले, वर्किंग कैपिटल, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, उनको अलग तरीके से सॉल्व करिए। इट्स नॉट अबाउट कि आपको बस पैसा आ जाएगा, अपने एबीसी में पैसा लगा दिए और एक्स वाई जेड को हो चाहिए। What was that XYZ for you that you solved first? कि तो मेरा पैसा आ सबसे पहला प्रॉब्लम बिकॉज़ वी आर इनटू B2B, तो हम वर्किंग कैपिटल सबका तो स्टार्ट होता है। तो 1.5 से 2 करोड़ हमने अपना वर्किंग कैपिटल में रिड्यूस किया। फिर टीम सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर कंपनी को चलाने के लिए होते हैं टीम। अपनी टीम पर पैसा खर्च किया।
टीम में पैसा यूज़ करने और हम अच्छे लोग हायर करके स्टार्ट किए, वो उसके अंदर फंड उठा के रखा कि यार कितना पैसा का ऑप्शन 12 की सैलरी अच्छे लोगों को देखा। बस वो 20-40 हज़ार में नहीं मिल पाता है। ये बिग बड़े 80 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आज की डेट में डेढ़ साल की मान लो। इफ यू टॉक अबाउट बैंगलोर में उसे 2.5 लाख रुपए में अच्छे कैंडिडेट्स का कोडिंग मेंबर्स मिल पा रहे हैं। Yeah. तो वो फंड आपके पास होना चाहिए कि हाँ यार मैं 12 से 14 महीने की सैलरी का एटलीस्ट देख पाऊँ। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी भी चल रहा है, वो सारा का सारा पैसा अपने बिज़नेस को ग्रो करने में लगेगा। बट टॉकिंग अबाउट द टीम पार्ट, तो वो वाला पैसा उसमें टीम के डेवलपमेंट का तो चैलेंजेस आते रहेंगे एंड आई जो भी मेरा रोड मैप मैंने अपने बिज़नेस के लिए बना रखा है, आई स्टिक टू दैट प्लान। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसे भी प्रॉब्लम आ जाए, मैंने अगर पैसा सोचा हुआ है कि मुझे इस एक तक पैसा लगाना तो मैं लेके ही लगाऊँगा। मैंने सोच रखा था कि मुझे जो मैं लिक्विडिटी अमाउंट पिछले राउंड में रेज़ किया था, मुझे 2 मशीनरी लेनी है। आई टूक 6 मही 8 महीने लगे मुझे उस प्लान तक पहुँचने के लिए जो मेरा 3 महीने का रोड मैप था। Yeah. बट मैंने वो इंफ्यूजन ऑफ फंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं डाला। मैंने वो बी पे नहीं लिया या सी पे। दैट्स हाउ वी आई particularly I Makes sense. What about you, Vansh? What were the first things that you were like, यहाँ पे पैसा डाल के ये पहले solve करना है? सो बेसिकली जब आपके पास नया फंड आता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख भी होती है, छोटी-छोटी प्रॉब्लम। ये ग्लास यहाँ से उठ के मेरे हाथ तक कैसे आएगा? सो जब आपके पास फंड्स होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी है कि आप उस फंड को लाइक आप 10 जगह पैसा खर्च कर रहे हो, दैट इज़ वेल एंड गुड कि आप टीम के ऊपर टीम को एक्सपेंड कर रहे हो, आपके ऑफिस को एक वेल इंफ्रा बना रहे हो, ठीक है, राइट? सारी चीज़ें वेल एंड गुड है। लेकिन वो एक कौन-सी ऐसी चीज़ है, जहाँ पे आप उस फंड का 10% निकाल के डालोगे, तो आपको 10-12% रिटर्न दिएगा सो दैट कि जो फंड आप यूज़ करते हो उसको रेगुलर बेसिस पे आप चलनी में लेके आ पाओ अपनी कंपनी के अंदर एज़ अ कैश फ्लो, राइट? अगर आप जो आपने फंडिंग रेज़ की है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 करोड़ रुपया रेज़ किया, आप उसमें से 50 लाख रुपए इधर-उधर टीम मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है ऑब्वियसली। आप इन सारी चीज़ों में वो पैसा खर्च कर रहे हो, बट बाकी का पैसा हमेशा ऐसी जगह जाना सीखें, जहाँ पे वो 50 लाख रुपए बचा हुआ डले, वो पूरा 1 करोड़ रुपए डाउन होके वापस आ जाए। बस दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपका बैंक अकाउंट कभी खाली ना हो, ठीक? वो ऐसी सिचुएशन जो आप शुरू से करते हुए आ रहे हैं, कभी ऐसा ना हो कि इन्वेस्टर्स के टर्म्स पे आपको चेक साइन करना पड़ जाए। वो सिचुएशन कभी ना आए। आप हमेशा कैश फ्लो में अच्छे चलते रहो। उस सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए उस पैसे को ऐसी जगह यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको प्लानिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो 10 लाख रुपए कहाँ कहाँ पे डले कि वो 1 करोड़ रुपए वापस आ जाए, जो आपने बाकी सारी चीज़ों में खर्च किया। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सो हमने सबसे शुरू में यही गलती करी। हमने टीम के ऊपर, इन्फ्रा के ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी। सेकंड मंथ में, इन द वेरी सेकंड मंथ ऐसी सिचुएशन आई कि हमारे लिए जो कभी 10-12 लोगों की हुआ करती थी, वो 52 लोगों की हो गई। हमारी सैलरी जाने लगी 10-12 लाख रुपए और कंपनी के अंदर जो रनिंग में इनपुट आ रहा है, वो हर महीने के 10 लाख रुपए। तो हम 2 लाख रुपए उस टाइम पे बर्न कर रहे थे। एट द ओल्ड मंथ इन्वेस्टर ने हमसे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? तो मेरी आँख बंद करके सोचा कि क्या कर रहे हैं? तो हमें समझ में आया कि हम बर्न कर रहे हैं। एक प्रॉफिटेबल कंपनी जो विदाउट फंड प्रॉफिटेबल थी, वो इन्वेस्टमेंट के बाद कैसे बर्न करना शुरू कर दिया उसने, राइट? दैट वाज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमें राइट टाइम पे समझनी होगी और एक स्टॉप लॉस हमेशा लेके चलना होगा। हमने जिस दिन वो मीटिंग करी उस दिन हमने स्टॉप लॉस लगाया। हमने प्लानिंग करा कि कब-कब किस-किस को निकालना है। ठीक है? लियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द कंपनी हमें लोगों को निकालना पड़ता है ऑब्वियसली एट द टाइम जब वो टीम आपको रिटर्न नहीं लाके दे पा रही होती है। सो स्टॉप लॉस हमेशा कैलकुलेट करके रखो कि कितना फंड इन्वेस्ट करने के बाद, यूज़ करने के बाद आप उसको रोकोगे, कहाँ पे क्या ट्रेनिंग करोगी, कहाँ से आपको सारा पैसा वापस रिटर्न जब भी यूज़ करेंगे। Yeah. Uh, I think that happens with a lot of founders कि पैसा आने के बाद तब लगता है कि ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें दिखती हैं मतलब आई थिंक Suraj took a very planned thing कि ये this is what I have planned and this is where I'm gonna put money that I think one of like really mature founders I see that kind of planning but a lot of people honestly a lot of them who are raising building for the first time I have been that founder so there is no shame in it we learn on the way कि कहाँ पे क्या कर दिया है and now we need to improve that or solve that right so that was really I mean very transparently that you shared loved it yeah Himanshu. So, in my opinion, which subject you're a founder, most one you have to enter into CEO mindset. So, what CEO mindset is, you have to have business plans as well as SUVs for your human resources.
keeping the whole responsibility clearly down each and every day. So even if that person leaves, other replacement can take that job right now. Yeah. Second, and the most important thing, जब when I got partner, I सबसे the first thing I focused on was drawing for myself. A lot of founders do not focus on that. You have your family, right? You have society, you have many elements, personal elements, right? So if you're not taking care of your own mental health, your own physical health, how will you take care of the full budget company, employees, business, lines, banks, VCs, investors, right? सब कुछ ध्यान रखना है ना, तो उसका आएगा कहाँ से आएगा? तो खुद का ध्यान पहले रखना है। तो draw money for yourself. Very important thing. A lot of founders will say you don't have to go full trouble कि पैसा है और मेरे को उसका एक ही दिखना है। करोगे, you will do it. Things business बना रहे हैं, फैमिली नहीं बना रहे हैं, राइट? तो it will take time, growth happens, slowly explodes. That's how the curve is like this, right? If it is good, it is like questions, but yeah, if so इस तरीके से these are the most छोटी छोटी important things that will actually help you utilize those funds very greatly. ज़्यादा चीजें ये लोग अवॉइड कर रहे हैं। Absolutely. नहीं नहीं, paying yourself and just to keep a check on how much you're paying yourself is also important. And these are the kind of terms that you also discuss with investors when you're closing the deal, right? I spoke to a founder recently and he said कि investor आ गया है, but there is a cap. They kept a cap on their withdrawing, which was very minimum. And they were desperate, so they still took the money. But they took some time to return that money so that they can have the stakes back and so that they can withdraw the money that they really deserve. So my next question is, investors तो बहुत सारे आएंगे है ना, जब हम reach out कर रहे हैं, there'll be a lot of people who will show interest. But how would you say yes to someone? Like, how do you align that this is the guy I want to trust with their money? And of course, this is a very long term engagement that you get into. So, what do you look in that investor to say yes to them? So basically, whenever you're talking to an investor and whenever you're sharing your about your business, कि मैं ये करने का प्लान है और ये कर रहा हूँ, ऊपर रेवेन्यू हो गया है और ये मेरा विजन है, इसको मैं ये बनाना चाहता हूँ। तो आप इन्वेस्टर से पूछो कि व्हाट्स योर थॉट इन माय बिजनेस, आप उसको कैसे स्केल करने में हेल्प करोगे, आपके क्या नॉर्मल वैल्यू एडिशन यहाँ पर आएगी। इट्स नॉट अबाउट मनी, जैसे आपने अभी बोला, ऑनेस्टली इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट वैल्यू क्रिएशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि इफ इन्वेस्टर इज सिटिंग आइडल इन कैपिटल, तो आप समझ लो कि वर्स्ट इन्वेस्टमेंट टू बी आपने रेज कर लिया है। तो प्लीज टॉक टू इन्वेस्टर बिफोर टेकिंग एनी ऑफ द मनी कि आपका रोड मैप क्या लगा एंड हाउ यू विल। इन माय केस आई एम नॉट अ टेकी गाय, और इवन राइट नाउ मेरे पास भी कोई सीखे नहीं है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे इस कंपनी को अगर लेट्स से 500 करोड़ या 1000 करोड़ पे लेके जाना है, तो आई रिक्वायर अ टैक्स इन माय सिस्टम। तो आई टॉक टू माय इन्वेस्टर कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है जो मैं आज से सॉल्व नहीं करूंगा। जैसे मैंने बताया मेरी एलईसी प्रॉब्लम, तो मेरी दैट वाज माय कोर प्रॉब्लम की जो मुझे सॉल्व करनी है। मैं इतने रेवेन्यू पे चले जाऊंगा तब मैं आपके पास आऊंगा, तो हेल्प मी डेवलप माय टैक। आई एम रेडी टू पे टू यू, क्योंकि उसका भी एक एक्सपेंस होगा, वो भी अपनी टीम डिप्लॉय करेगा। बट मेरी ये आप प्रॉब्लम सॉल्व करके देना। पहला अलाइनमेंट मेरे इन्वेस्टर के साथ ये हुआ था। सेकंड अलाइनमेंट कि जब मैं इतने रेवेन्यू पे या इतने स्टेज पर होऊंगा, उसके बाद मुझे ग्रोथ के लिए अगर और पैसा लगेगा, या मुझे आपकी मेंटरशिप लगेगी, या मुझे गाइडेंस लगेगी, या फिर आपका जो कोई और एक्स प्लान पहले रखा हुआ था उसके अंदर वो हमारे प्लान से एग्जीक्यूट करना का होगा, तो हैव अ डिटेल डिस्कशन विद दैट पर्टिकुलरली इन्वेस्टर। तो यस बोलने के लिए कि जब पहली बार हमने आपको यस बोला फर्स्ट इन्वेस्टर को, तो हमने ये सोच के बोला कि यस दिस गाय और दिस इन्वेस्टर विल create a value in our company. My second investor जिनके साथ हमने आज सुबह डील क्लोज कर दी, टेक्निकली दैट डील क्लोज 30 days बैक ओनली, एंड 30 days से मैं क्या कर रहा हूँ, उस इन्वेस्टर के साथ मैं दिन रात घूम रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू हैव अ स्टडी उनका कितना बड़ा पोर्टफोलियो है, उनका क्या साइज है। उन्होंने ऑलरेडी बिफोर इन्वेस्टिंग इटिंग इन माय अकाउंट, उन्होंने ऑलरेडी मुझे लोगों से मिलवाना स्टार्ट कर दिया। तो दैट्स इम्प्लाइज कि यार वो कितना हमारे साथ लाइन है और उनका कितना बड़ा नेटवर्क है, या वो हमेशा कितना वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं।
Secondly, which I missed out, that my right now investor जिसने फैमिली ऑफिस से पैसा डाला, he's not one of my client हो. मैं उनको अपना प्रोडक्ट पिच करने गया था. उन्होंने बोला भाई प्रोडक्ट को साइड करो, बताओ कितना पैसा चाहिए. मतलब that I didn't pitch कि मुझे पैसा रेज करना है. मैंने जैसे आपको बोला कि the best time to raise the money when you don't require the money. तो आप उसके बाद जब आप जाएंगे उनसे आप फाइनली टर्म्स क्योंकि आपको पैसा नहीं चाहिए. आप 6 महीना वेट कर सकते हो, 4 महीना वेट कर सकते हो या यहाँ से आप 1 साल का और आप टाइम लगा सकते हो या कहीं और से फंड रेज़ कर सकते हो वर्किंग कैपिटल का। तो बट मेरे को समझ में आ गया कि अगर आज मैं इनसे $1 मिलियन ले रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट वैल्यू, बट वो मेरे को कितना टाइम रिटर्न दे पाएँगे अपनी वैल्यू से। तो मुझे समझ में आया कि दिस इज़ द गाय, दिस इज़ द परफेक्ट फैमिली ऑफिस जो मुझे मेरी जर्नी में हेल्प करेंगे एंड वी आर डूइंग अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। It's not about we are taking just funding. We are inclined on the strategic partnership उनके साथ अलायंस क्रिएट कर रहे हैं। हमने एक अपना पूल टाइप बनाया एंड अपना वहाँ से हम रेवेन्यू को लेवरेज करना स्टार्ट कर दिया। I think those are the perfect kind of investors that you need to look for. जो आपको .1 से .10 तक लेके जाएंगे, will help you grow your business with their connection. So these kind of people have really good connection. When we say how you actually grow that fast, these kind of people take you so far. So that is one of really good things that you said. Look for strategical investors who would come with strategy, who would come with network, who would not just come with money, because honestly पैसा डालने वाले काफी लोग मिल जाएंगे, but people who really add value to your business is something that you need to be looking at. Yeah, Vansh. See, before getting to lead you, right? उससे पहले क्या होगा जब आपने पिच किया होगा किसी भी इन्वेस्टर को, आप कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में होते ग्लोबली एंड आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है 3 4 6 महीने का ये समझने के लिए कि व्हाट द पर्सन लुकिंग इनटू यू, लाइक वो आपके अंदर क्या देख रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है एंड क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट के साथ अलाइन कर पा रहे हैं, राइट? सो जब हमारा इनिशियल डिस्कशन शुरू हुआ था तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, राइट? हमारे पास एक अच्छा सा ऑफिस थी ना, एक अच्छी सी गाड़ी नहीं थी, ठीक है, बैंक बैलेंस नहीं था अच्छा सा, जो कि भी कंपनी को स्केल करके रिक्वायर्ड था। सो हमारा डिस्कशन चला उनके साथ काफी लंबा 6 महीने का एंड उस पूरे प्रोसेस में हमने उन जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें लगती थी कि एक्सवाइजेड प्रॉब्लम हो सकती है, हमने बैठ के उनके साथ जब भी उनका कॉल आया उनके साथ मीटिंग हुई, अपनी इन्वेस्टर के साथ डिस्कशन किया प्रॉपर एंड हमने देखा कि ही इज विलिंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम व्हिच वी आर इन। उन्होंने हमें एक अच्छा ऑफिस प्रोवाइड कराया, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने इन्वेस्ट भी किया, बट बिफोर दैट जो भी प्रॉब्लम हम लोग एट एट दैट पर्टिकुलर डे व्हेन वी वर इनटू द डिस्कशन हम लोग फेस कर रहे थे, उन्होंने एक अच्छा सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कराया, राइट? सो इस चीज से ये समझ आता है कि द पर्सन इज नॉट ओनली लुकिंग आफ्टर द प्रॉफिट, ही इज लुकिंग टू बिग समथिंग बिग इनटू द मार्केट। उनका जो मेन गोल है वो एग्जिट करना, प्रॉफिट निकालना, ये सब नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं जाके इसको। उनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है इन्वेस्टर का, वो उसके अंदर थोड़ा स्केल करेंगे तो जितना वो आपसे निकालने का सोच रहे हो फिर वो उससे भी निकाल लेंगे। बट द थिंग इज कि द मेन गोल इज टू ब्रेक समथिंग, टू बिल्ड समथिंग बिग। सो बड़ा बनाने के लिए एक विजन और एक मिशन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपका होता है, और अगर उनका अलाइनमेंट आपके साथ प्रॉपर उसके साथ बैठ पा रहा है, सो इट्स अ प्रॉपर यस। Yeah. Thank you for sharing that. Yeah, Himanshu. My sponsor, this would be written there. Had anyone been in a toxic relationship? Toxic under 3 years working, 3 years working. Anyone? People would be hesitant, but yeah, we know a lot of us. Okay. So before getting in such a relationship, you always get an intuition, some flags which you ignore before getting into that relationship, right? That is exactly what conversations with your investor. You were getting of that intuition, those flags, that near, right? So how you develop that is pleasant even in general. So your intuition develops, right? And that's how literally you would figure out when they were listening. Of course, your behavior पर आएगा, again, most part power. But intuition, trust your intuition. That would be Yeah. Look for those red flags and green flags. I love that bit. So time for some live Q&As. If you guys are raising right now or planning to raise later on, whatever stage you are at, if you have a question right now,
please ask. Can you pass on the mic? Please raise your hands so that we can pass on the mic. Ask anything and everything, whatever. There is no filter here. So we'll start with your name, company, and the question. Yeah, Prashant this side. Our founder is Rio Grande. We are connecting wellness with professionals. It's an integrated language background. And right now we have taken that right from the government to the government. And right now we're looking for angel investors. So what's the best way to find an particular angel investor? How can I reach them? How can I transmit them? Can I know more about your product? Yeah, Okay, sure. yeah, please. So basically, कोई इवेंट कर रहा है, शादी कराना है या घर कराना है, तो कोई भी बंदा सिलेक्ट से कुछ लोग क्या हुआ है, मीडिया वाला है, फुल वाला, हमने मीडिया कैसे नहीं है, मीडिया वाला बोलो आपके घर पे आके आपके साथ डिसीजन करेगा, सर्विस करेगा, डिसीजन करेगा, It's all about only Shadi event, or it can be the vendor place of any of the product, any of the product. right? Right now, we events awareness. So my advice would be, we are also into the B2B space. हमारे कोर स्ट्रेंथ नेटवर्क है। अब इसी सेंचर के साथ प्रॉब्लम है कि हम सारा लेके पहुंचोगे ना तो 100% चांसेस है कि they will not invest. आप हमें सेगमेंट को पहले फिक्स करो कि आपको शादी वाले प्लान में जाना है, इवेंट वाले प्लान में जाना है, और B2B में किसी सीमेंट जैसे कंपनी ने रेस दिया परफॉर्मेंस, वी आर इनटू सीमेंट, और 30 मिनट्स के अंदर दे मेक अ डिलीवरी फॉर सीमेंट से अंदर कंस्ट्रक्शन में। तो आपको सेगमेंट पहले फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप सब में घुसने की कोशिश करोगे तो परफेक्ट शादी.com सॉर्ट ऑफ ठीक है। Horticulture. अब आखिर मेरा मेन क्वेश्चन, मुझे एंजल्स कहाँ से मिलेंगे? तो देयर आर वन वेबसाइट नेम इज ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन पे जाओ आप, और ट्रैक्शन पे वो कंपनी लिस्ट डाउन करे जो आपके वर्टिकल्स के अंदर है। मैं सबसे इजी पैरामीटर बता रहा हूँ और बोलूंगा, आपके जैसी कंपनीज को फिगर आउट करो, लेट्स से 30 का डेटा बनाओ, उस 30 कंपनी में कितने लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, उनका एक डेटाबेस बनाओ और उनको रीच आउट करना स्टार्ट करो, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर बिजनेस। और ऐसा मत सोचना कि उसने एक एक्स कंपनी में सेम कंपनी में पैसा लगा रखा है तो वो मेरी कंपनी में पैसा नहीं डालेगा। आंसर विल बी नो, मतलब ऐसा नहीं होता है। अगर उसने एक्स में पैसा लगा रखा है तो दे विल डू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यू कि हाँ आप यहाँ पर मेरे लिए वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हो जो मेरी वैल्यू अभी मार्केट पे करनी है। यू कैन हैव ए अलाइनमेंट एंड यू कैन टेक दो ही सबसे सिंपल व्हाट्सएप नंबर, भाई एक वेबसाइट है, लिख लो उसको लूशा। लूशा पे सारा डेटा अवेलेबल है। लूशा LUSHA। देयर आर 2 वेबसाइट जिसको बस हर फाउंडर के पास होना चाहिए। फर्स्ट वेबसाइट नेम विल बी ट्रैक्शन। ट्रैक्शन पे सारा डेटा मिल जाता है, इस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू तक मिल जाता है, कितना ग्रॉस मार्जिन चल रहा है उस कंपनी का, किस कंपनी का, और कितना फंड डिप्लॉय कर रखा है, कितना फंड कहाँ लगा हुआ है, सारा ट्रैक्शन पे डेटा अवेलेबल है। नहीं है हमारा तो उसका सब्सक्रिप्शन मॉडल ले लो, विच मैंने तो नहीं लिया था, मैंने अपने किसी फ्रेंड से मांग लिया था, भाई मुझे अपना आप सब्सक्रिप्शन मॉडल दो, बिकॉज मैं थोड़ा कंफ्यूज फाउंडर हूँ, मतलब मैं सोच के बैठा। तो सेकेंडली लूशा, आप लूशा का सब्सक्रिप्शन मॉडल लेने चाहो चलेगा, नहीं तो मैंने क्या करा था, जैसे मेरी टीम में 18-20 लोग हैं तो आप एक आईडी से 30 या 40 डेटा निकाल सकते हो। तो मैं तो सबकी आईडी लॉगिन कर करके लूशा से डेटा निकालता हूँ, मतलब आगे सब कुछ मिल जाता है। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, उनको निकालो, उनको सीधा रीच आउट करो, पहले उनको अपना डेक भेजो व्हाट्सएप पे, थोड़ा उनको पढ़ने दो, उनके बाद उसके बाद करो कि yesterday I have sent you my deck, please give me 30 minutes of your time, let's have a detailed discussion on that part। तो वहां से आपको एंजल्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। सारे इन्वेस्टर्स दुनिया में, मतलब आज मुझे भी सर्च करोगे जाके लूशा पे मेरी कंपनी का नाम डालोगे, सागर लिखोगे तो यू विल गेट माय ईमेल लिस्ट, और सारे जितने भी फाउंडर्स बैठे हुए हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, सबका डेटा वहां पर अवेलेबल जाता है। 99.9% वहां पर एक्यूरेसी रेट है वहां पर डेटा। और थर्ड सेकंड विल बी क्लाउड आ गया आपको जमाने के अंदर, क्लाउड पे लेके तो सब कुछ अपना एक इंजन बॉट बना लो, सबका डेटा क्लाउड ही निकाल के दे देगा, आपको भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दे देगा। क्लाउड में आपने जो 30 कंपनी का डेटा निकाल रखा होगा उसको डालो, उसको बोलो कि भाई मुझे इन कंपनीज में जिन्होंने इन्वेस्टर्स ने जो पैसा डाला हुआ है उसकी आप लिस्ट बनाओ, उनका ईमेल आईडीज बनाओ, उनका मुझे फोन नंबर निकाल के दो, उनका ऑफिस का एड्रेस तक निकाल के दो, क्लाउड सब निकाल के दे देगा।
$20 का फीस है बस, 1918 रुपए में मिल जाएगा, इतना तो इन्वेस्ट कर लो, तो 10 मिनट में आपका डेटा कर देगा और क्लाउड को ही बोल दो सारी ईमेल्स वही भेज देगा आपके लिए। हाँ, $20 स्टार्टिंग में मत लो, मतलब हाँ, बहुत बाद की चीज़ की बात हो जाती है। या उसके बाद फ्री वर्ज़न में भी काम हो जाएगा, क्लाउड में यूज़ नहीं कर पा रहे, यूशा पे जाओ, सारा डेटा अवेलेबल है। मैन्युअली डालो यार, थोड़ा-सा स्ट्रगल तो करो। दिन की 100 ईमेल तो कर ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। यस, इसके बाद अगर सर क्या होगा? आपने ईमेल्स करना स्टार्ट किया तो देयर आर फ्यू एक्सटेंशन जो मैंने नहीं लगा रखा था, बाकी फोल्डर्स लगाते हैं कि कितना मेरी ईमेल्स कितने लोगों ने ओपन करी हैं। एक जीमास करके सॉफ्टवेयर आता है, कितनी ईमेल्स मेरी ओपन हुई हैं, क्या मेरा हुआ है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ईमेल खुलने के बाद इट्स नॉट अबाउट गारंटी आपको फंडिंग मिल जाएगी। आप उनको हर महीने जैसे मैंने बताया कि आज आपने उनको डेक भेजा, तो 100 लोगों को आज मैंने डेक भेजा या इस महीने के अंदर मैंने टारगेट रखा कि मैं 100 लोगों को भेजूँगा। 100 में से मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा ठीक है 2 लोगों का रिप्लाई आएगा बस। कि आओ लेट्स कनेक्ट ऑन द कॉल। अगर नहीं आ रहा है, अगले महीने सिर्फ डेक मत भेजो कि एमआईएस बनाओ कि ये मैंने पिछले महीने का मेरा ये ग्रोथ था, इस महीने का ये मेरा ये प्लान है, इतना रेवेन्यू जनरेट हो गया, अब मैं ये करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। उसके लिए उसको वो उठा के सेम ईमेल पे डाल दो। तो उसको फोमो क्रिएट करवाओ कि हाँ, अच्छा ये फाउंडर है, ये कंपनी है। तो बार-बार आपका जब कंपनी का नाम 3, 4, 5 बार जाता रहेगा ना, तो इन्वेस्टर सामने से बोलेगा लेट्स कनेक्ट ऑन द कॉल। So must प्लीज़। best possible one सबसे ज़्यादा responses आते हैं email। ऐसा कुछ पर्टिकुलरली इसका आंसर नहीं है बट ईदर वेज़ वर्क। व्हाट्सएप पे वो तभी आपको रिप्लाई करेंगे अगर आप किसी रेफरेंस से जाओगे। बट 20% इन्वेस्टर्स आते हैं यार उनको भी पैसा बनाना है ना, तो वो लोग खूब ढूँढ रहे हैं आप लोगों को, हम लोगों को। टू बी वेरी ऑनेस्ट इन्वेस्टर हमको ढूँढ रहे हैं, हम इन्वेस्टर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं बस। उनको अपना पैसा बनाना है। तो वो अगर आपने एक शॉर्ट आपने एसे लिख दिया तो कोई नहीं पढ़ेगा। 4-5 लाइन में जैसे हमारी बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुआ, 4-5 लाइन और डेक अपना भेजो, डेफिनिटली कॉल आएगा ही आएगा। अगर उस सीईओ या उस इन्वेस्टर के पास टाइम नहीं है, तो उनकी टीम को किसी को रीच आउट करो। उनको बोलो जाके जैसे लूशा से सारा डेटा मिल जाएगा। उनके लीडर्स को जाओ, उनके जनरल मैनेजर्स के पास जाओ कि प्लीज़ मेरा एक अपॉइंटमेंट फिक्स करा दो। और आजकल हर एवरी फाउंडर ने अपना ओपन लिंक कैलेंडर का डाला हुआ है। आप उसके लिंक्डइन पे जाओ, ओपन कैलेंडर पे जाके उसके 1 महीने बाद की डेट मिलेगी, आप खुद से कैलेंडर बुक कर दो जाकर। और आपके पास वो डेफिनिटली जिस टाइम जब वो कैलेंडर बुक करेगा, वो 15 मिनट, 20 मिनट के लिए आपके लिए टाइम निकाल के रखेगा। बस आपको रेडी रहना है पिच करने के लिए। Thanks so much, sir. yeah. Yeah, Prashant, you are sitting on one very unexplored gold mine. I will tell you. देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आज मैं जाके स्विगी और ब्लिंकिट पिच करूंगा ना किसी भी इन्वेस्टर को, सिमिलर बिजनेस ऑफ कोर्स, वो मना कर देगा क्योंकि ऑलरेडी है। ठीक है, आप एंड योर कार्ड वेडिंग एनिवर्सरी बर्थडे राइट, अब ही सेट खाली रखो, हमारे टैलेंट इज देयर एंड नहीं वेडिंग बनाना और भी वेडिंग ही कुछ है, बट यू आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। Buying Anand Mahindra was at the India 1, India 2, India 3. India 3, low purchase power, India 2, medium, India 1, India 2, aspirational, India 1, Spain's 1. Right? India 1 अपने events कहाँ कर रहा है? They are doing foreign weddings. They are doing foreign events, foreign birthday parties, foreign bachelor's parties, right? When your referral, your market, your event service provider there. मेरा पाली में डेकोरेटर है, पाली के अंदर ये build your business there. And I am telling you, you will get investment much more easily. What your correct pitches. आप डिफरेंशिएट यहाँ करोगे, आपको पिच, आपको इन्वेस्टर तब इंटरेस्ट आएगा। आप बोलोगे यार मैं इंडिया के अंदर 50 लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो लोकल हैंडल कर रहे हैं, कॉर्पोरेट हैंडल तो है, मार्केट प्लेस ऑलरेडी है। अगर मैं ये बोलूँ कि यार एक एचआई है, उसको श्रीलंका में जाके वेडिंग करवानी है एंड आई विल डू एंड टू एंड एवरीथिंग, वहाँ पे मेरे सारे वो हैं एंड अक्रॉस द ग्लोब मेरे सब है, उसको श्रीलंका में शादी करनी है, क्रोएशिया में बैचलर्स करनी है, जो आई विल व्हिच इज बेटर फॉर मी। मैं मेरा सीधा दिमाग आया ना कि वो पूरा ये तो ग्लोबल मार्केट नाउ, you also will have foreign customers that way, not just Indian, you will have global market size बड़ा हो गया, सब कुछ बड़ा हो गया मुझसे obviously। तो थोड़ा be creative around it and upper then your buying system should be ultra HNIs, some really rich people, so you have to build your team accordingly, you have to be, this is one company को नाम याद नहीं आ रहा, they कोई फंड इसलिए लग रहा है मेकशिफ्ट कंपनी, वो एचएनआईज को प्लेन्स रूफ्स ये सारे रोड्स वगैरह डालते,
I want money there. ठीक है. And the question is how can I join Swayam Brands? ऐसा potential. पहले मैं एक बार it's Uber जब लॉन्च हुआ था Uber में प्रॉब्लम था कि मैं पहले क्लाइंट्स लेकर आऊँ या मैं ड्राइवर्स लेकर आऊँ. मैं क्लाइंट्स लेकर आ गया, मैंने मार्केटिंग चालू कर दी तो सर्विस कौन देगा? ड्राइवर्स में मेरा कॉस्ट है. ऑल्ट्रेजी के ड्राइवर लेके आए पहले और फिर ऑटोमेटिकली मार्केटिंग चालू करी एंड कंज्यूमर्स लेना. दैट्स हाउ Uber. You build your और वो तो वो भी नहीं लगा ड्राइवर्स को, वो शायद मतलब हमारे रेफरल पार्टनर्स को इवन जो भी है वो फॉरेन में तो वो पैसे थोड़ी दे रहे हैं, वो अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं. नेटवर्क क्रिएट होगा तो हमारे हमको पता है 10-15 और डेस्टिनेशंस है, यूएई, सिंगापुर, बाली, थाईलैंड या आसपास शीर्ष तो मिडल से गए और अपने ये वेडिंग के एनिवर्सरी होते इवेंट्स हमें बेस्ट ऐसी पीपल नॉट ऑल्सो बेस्ट पीपल जिनका क्रिएटिव बहुत क्रेजी अलग चल रहा है. ठीक है, ऐसे लोगों को अपना रेफरल पार्टनर बनाओ, उसके बाद हमारा कुछ ऑटोमेटिक इतना ब्यूटीफुल हो जाएगा for your clients. You will get clients then and there. Of course, you have to find out clients मेहनत to everybody. But Yeah. for me, that is a much better result than what you are doing with current. So, Is revenue to investors. I'll have to ask you guys to take it offline after this so that we can answer more questions. You guys connect, and I think you can ask a lot of questions then. Do we have more people who would like to ask anything related to fundraising or what these guys have already done? Great. Then we'll wrap up. And any final thoughts that you would like to share with people here who are building or who have ideas that they are building? बट नहीं पता आगे जाके इन्वेस्टर मिलेंगे क्या होगा. एनी फाइनल थॉट्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद देम? Sure. So conclusion ये है मतलब what works for me, I believe in execution. आइडियाज इन्वेस्टर सब मिल जाएंगे. आइडियाज पे आपने भरोसा रखो. इन्वेस्टर तो बहुत बैठे हुए हैं, पैसे की टेंशन मत लो. अगर आपके दिमाग में एक आइडिया आ चुका है प्लीज एग्जीक्यूट इट. सिर्फ एक्सेल पे या पीपीटी पे नहीं, ऑन ग्राउंड उसको एग्जीक्यूट करो. और कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम में लेते हुए, अगर मैं आपकी जगह पर हूँ और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं अपनी चाची बुआ जिसकी भी शादी हो रही करके मैं उसको बोलूँगा आप मुझे बजट बताओ. 10 लाख का बजट है, मैं आपको 8 लाख में शादी करा के दूँ. दैट्स माई प्रॉमिस टू यू. तो मैं अपना पहला बिजनेस जो स्टार्ट करूँगा अपने नेटवर्क से स्टार्ट करूँगा कि मुझे वो चीज़ को एग्जीक्यूट करके देखना है कि क्या ये मेरा मॉडल सक्सेसफुल है, मैं कर पाऊँगा, क्या मैं प्रॉफिटेबिलिटी पे लेके जा पाऊँगा, क्या मुझे बंद तो नहीं करना पड़ेगा. तो आप जो भी अपना प्रोडक्ट सर्विस पकड़ो प्लीज़ उसको एग्जीक्यूट करो 3 से 4 महीने के लिए. जब थोड़ा बहुत 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाए, उसको स्केल करने के लिए देन गो फॉर द इन्वेस्टर. आप पहले दिन से इन्वेस्टर के पास जाते रहोगे तो आप ना तो पैसा रेज़ कर पाओगे ढंग से, ना तो आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे. तो बीइंग अ फाउंडर, आपका फाउंडर माइंडसेट होना चाहिए कि मैं आई एम अ एग्जीक्यूटर गाय, कि अगर मेरे दिमाग में कुछ भी प्लान आ जाता है तो मैं पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ बिफोर डिस्कसिंग टू माय टीम आल्सो, कि मैं खुद से ही निकल जाता हूँ. मुझे अगर मशीनरी लगानी निकल के रख लो तो मैं खुद से चला जाऊंगा यार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में. मेरे को शर्म नहीं है उस चीज़ के लिए. या फिर मुझे लेट्स से मुझे चाइना से इंपोर्ट बढ़ाना तो मैं खुद से चाइना गया, मैंने अपनी पैकेजिंग मटेरियल का इंपोर्ट वहाँ से स्टार्ट करने के लिए. तो आई थॉट कि यार ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है. हो सकता है वो हमेशा नहीं होगा कि वो हमेशा राइट होगा या रॉन्ग होगा. जब तक आप उस चीज़ को खुद से करके नहीं देखोगे, तब तक आपको उस चीज़ का आंसर राइट और रॉन्ग नहीं मिलेंगे. तो हैव जो भी आपका आइडियाज़ है, इन्वेस्टर के पीछे मत भागो भाई, मिल जाएँगे इन्वेस्टर. प्लीज़ आइडिया के पीछे भागो, रेवेन्यू जनरेट करो, लेट इन्वेस्टर कम टू यू. वो 100% आपके पास आएँगे अगर आपके आइडिया में दम है. So basically, please summarize the whole thing which we are discussing from the very start. So the thing is, कि before raising fund, before starting raising fund, what you have to focus is like what you have to do before raising funds. So the thing is networking, internationalization, and a valuable product in your hand. So everything is well accordingly. Thank you. My part and message is do not underestimate niches. Great businesses are built in niches. आजाद करोड़ के मार्केट में अगर हज़ार ऐसे कैन कैप्चर 5 करोड़, 20 करोड़ की मार्केट में बोलो ही कैप्चर है. Just find out उसी ब्रॉड मार्केट में एक niche build out this is there. You will make money. Thank you so much, guys, and thank you so much for all of your time. I know how precious time is in a founder's life.
And thank you so much to the three of them to take out time and, even when things were going otherwise, but taking out time to share your thoughts on how you did it. This is a sort of help that you're doing towards founders who are right now building to your version one, right? So thank you so much for your time and all your thoughts and such good insights. So thank you so much. It was lovely to talk to all of you. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.